Yes, ma'am. सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं मैडम. Yeah. बोलिए. A very good morning, all of you. And today I'm going. Good morning. Good morning. Good morning. So today I am going to talk. Good morning. Good morning, ma'am. Morning. Good morning. So today I am going to talk on a very sensitive topic regarding research, and that is ethical issues, which also includes plagiarism, right? So I would like to discuss so many points related to plagiarism today. So let's start without wasting any time. Okay. See, friends, actually, your research publication, what it is? It is actually the final stage of your research, and therefore it is your prime responsibility कि वो research qualitative हो, right? And researchers have a responsibility to ensure that their publications are honest, clear, accurate, complete and balanced. Okay? देखिए यहाँ पे हर एक शब्द बहुत important है. आपका publication कैसा होना चाहिए? It should be honest, clear, accurate, complete and balanced, and should avoid misleading, selective or ambiguous reporting. So journal editors and peer reviewers also have the responsibilities to maintain the quality of the research publications. So there are some ethics from author's point of view, from reviewer's point of view, and from editor's point of view. From author's point of view, you should ensure that it is your original work, it is unpublished, and you have cited all the references you have used, and it is not redundant submission, it is not also duplicate submission, okay, and there is no conflict of interest. And for reviewers, they should maintain the confidentiality, they should review the article honestly, they should check that all the cited works having proper references. And for editor's point of view, fairness, then confidentiality, then protection of conflict of interests. All these things are very important ethical issues. So, friends, I'm going to talk on some ethical regarding guidelines on ethics of research. Okay, so there are some publication ethics, and there are some guidelines. जैसे मेजर गाइडलाइंस में आता है जर्नल के इंस्ट्रक्शंस, वहाँ पे देखिए ऑथर्स गाइडलाइंस होती है. सो उसमें भी आपको पब्लिकेशन एथिक्स के बारे में बताया जाता है. Then the standard documents are Blackwell Best Practice Guidelines, GOP, then International Committee on Medical Journal Editors, then GPP, that is Good Publication Practice for Pharmaceutical Companies, then EMWA, that is European Medical Writers Association, then CSE, that is Council of Science Editors Guidelines, WEM, that is World Association of Medical Editors, and EASE, that is European Association of Science Editors. इसमें से हमको इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, बिकॉज वी ऑल आर टीचर्स. एंड एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स ये यूके की कमिटी है, एंड दिस डॉक्यूमेंट इज फॉलोड बाय यूजीसी. ठीक है, तो हमें इसके गाइडलाइंस पे ज्यादा फोकस करना है. दिस इज ICMJE पेज. यहाँ पे आप प्लेजरिज्म शब्द देते हो तो यू विल गेट some 15 guidelines regarding plagiarism. See, this is for scientific misconduct, expressions of concern and retraction. Then this is one more, that is good publication practice guidelines. Okay, this is for pharmaceutical companies. Then European Medical Writers Association is also there, and in this way they have given the guidelines for medical writers. Then CSE, Council of Science Editors, and here you can read this white paper on publication ethics. See, this is the paper, and WEM is also there. It is for medical editors, and they have given policies in this way. Okay,
Under authors, authorship, then ghostwriting, then predatory or pseudo journals and all. Conflict of interest, peer review. Okay. Then EASE is also there, European Association of Science Editors. Their document is also there for ethical guidelines. And of course, there are four basic principles of research ethics. The first one is integrity, respect, good consequences, and fairness. Right. Now, I would like to tell you some best practices in publication ethics in a very brief manner. Okay. The very first thing is editor should maintain the transparency and the author should also maintain the transparency. Suppose if the research is funded by some research organization or government, then he should declare in his publication that this research has been sponsored. Okay, funding is provided by. So that should be editorial policy to maintain the transparency. The second one is authorship and acknowledgement. See, editor should maintain these two columns. The first one is authorship and other one is acknowledgement. ऑथरशिप का मतलब क्या होता है? ऑथर कौन हो सकता है? जिसका सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन है टू कंसेप्शन एंड डिजाइन और एक्विजिशन ऑफ डेटा और एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, तो वो ऑथरशिप में आता है. ड्राफ्टिंग द आर्टिकल और रिवाइजिंग इट क्रिटिकली फॉर इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल कंटेंट, इसमें कोई शामिल है तो ही कैन बी द ऑथर. एंड फाइनल अप्रूवल ऑफ द वर्जन टू बी पब्लिश्ड, ये जो बनाता है, तो ये तीन केसेस में जो इन्वॉल्व है दे आर कॉल्ड एज ऑथर. लेकिन आपका जो पेपर होता है उसमें और भी कुछ हैंड्स और हेड्स लगते हैं, राइट? तो उनके नाम एक्नॉलेजमेंट में दिए जाते हैं. दे आर नॉट इंक्लूडेड अंडर ऑथरशिप. Okay. So editor का काम क्या होता है? They should ask for the details of all the contributions to this that particular publication. देन तीसरा है कलेक्टिंग ऑथरशिप इंफॉर्मेशन. ये एडिटर का काम है. ऑथरशिप के पूरे पूरे इंफॉर्मेशन लेके बहुत से पब्लिकेशंस में ऑथर के नाम और उनका एक शॉर्ट सीवी दिया जाता है. अभी देखिए, अभी कभी कभी ग्रुप रिसर्च होता है, तो ग्रुप में ऑथरशिप देने के लिए भी जो एडिटर्स होते हैं उनके पॉलिसीज होने चाहिए और उसमें किसी एक इंडिविजुअल को डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए और उन्होंने एडिटर को बताना चाहिए कि हाँ, दीज आर द ऑथर्स एंड ये बाकी के लोग जो है वो एक्नॉलेजमेंट में जाएंगे. देखिए, कभी कभी आप आपका पेपर जो होता है रिसर्च पब्लिकेशन या थीसिस है आपका, तो आप क्या करते हो, कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश होता है कहीं पे, आप पोस्टर्स बनाते हो, कभी कोई मीटिंग्स में आप डेटा और आपके फाइंडिंग्स डिस्कस करते हो. तो ऐसी चीजों के लिए मल्टीपल पब्लिकेशन बहुत से एडिटर लोग नहीं मानते एंड दे पब्लिश सच आर्टिकल्स. ओके, so this is also one of the best practice. Then promoting research integrity. देखिए, रिसर्च इंटीग्रिटी बढ़ाने के लिए अगर देखिए आपको कोई रिसर्च मिसकंडक्ट का केस सामने आता है, तो आपको सबसे पहले जो ऑथर होता है उसको कांटेक्ट करना है. ऑथर की क्या साइड है वो आपको पहले समझनी है और उसके बाद में ही आपको आगे की स्टेप लेनी है. उसके बाद में कि आपके पास में एनिमल एज सब्जेक्ट है या ह्यूमन बीइंग एज द सब्जेक्ट है आपके, इसमें आप किसी के क्लिनिकल ट्रायल्स ले रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है. सो WHO ने ये दो तीन साइट्स का नाम बताया जहाँ पे जाकर आप आपके क्लिनिकल ट्रायल्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. और आप जो भी पेपर पब्लिश करेंगे उसमें ये रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना आवश्यक होता है. ओके. एंड ऑफ कोर्स जिसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसके राइट्स को आपको प्रोटेक्ट करना है. जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है. सपोज इफ यू आर यूजिंग सम MRI रिपोर्ट ऑफ सम पेशेंट, तो उसका नाम डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी आपको ध्यान में रखनी है. कल्चर और हेरिटेज से संबंधित कोई आप यूज कर रहे हो इंफॉर्मेशन, तो उसका भी रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी होता है.
ओके, अभी देखिए, अगर एक आध पेपर में एरर पाई गई, अगर कोई पेपर में मिसकंडक्ट पाया गया, अगर कोई पेपर रिट्रैक्ट हो गया, तो आपको अगले इशू में रनिंग पेजेस पे रीडर्स को बताना चाहिए कि ये एरर थी। मीन्स एराटा देना और रिट्रैक्शन का मैसेज देना, एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न डिस्क्लोज करना, दीज आर आल्सो द बेस्ट प्रैक्टिसेस। फिर पब्लिशिंग द वर्क फ्रॉम जर्नल्स ओन स्टाफ, जैसे मैं आई एम वन ऑफ द एडिटर, तो मैं मेरे जर्नल में पब्लिश नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। देयर इज अ प्रोविजन एंड दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज द बेस्ट प्रैक्टिस, कि मैं भी दे सकती हूँ, सिर्फ मैं वो प्रोसीजर से बाहर रहूंगी एज फार एज माय आर्टिकल इज इवैल्यूएटेड बाय अदर एडिटर्स एंड पीयर रिव्यूअर्स। देन टाइमली पब्लिकेशन, ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। आपको सबको पता है टाइम की वैल्यू क्या है। टाइमली पीयर रिव्यू होना चाहिए, टाइमली वो इशू निकलना चाहिए। ये जर्नल पब्लिकेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे पेटेंट ओनरशिप, उसके बाद में स्टॉक ओनरशिप, कंसल्टेंसीज, इसमें किसी का कोई इंटरेस्ट है ऑथर का, सो दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड। ओके, जैसे कोई फंडेड ये है, रिसर्च है, पब्लिकेशन है, तो स्पेशल इश्यूज निकालना जर्नल के, सप्लीमेंट्स निकालना, दिस इज आल्सो ट्रीटेड एज बेस्ट प्रैक्टिस। एंड लास्टली कॉपीराइट, copyright protection, IPR protection is also one of the thing. Now I am coming to plagiarism issues. See friends, the biggest misconception about plagiarism is that it is synonymous to copyright infringement. लेकिन ये दोनों चीजें अलग अलग है। प्लेजरिज्म का मतलब क्या है? प्लेजरिज्म मीन्स व्हेन यू डोंट से वेयर यू टुक इट फ्रॉम, इट डील्स विद द मोरल एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च। लेकिन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या है? Copyright infringement means when you take it without the permission of the copyright holder. So it has got legal platform. Okay? और हमारे देश में कॉपीराइट एक्ट है 1957 का, राइट? अभी देखिए, so these two concepts are overlapping concepts. This is moral and this is legal. लेकिन ये जो overlapping portion है, it is both. That means when you take it without the permission of copyright holder and pass it off as your own work, मतलब यहाँ पे आप दोनों कर रहे हो, आप प्लेजरिज्म भी कर रहे हो और कॉपीराइट का वायलेशन भी कर रहे हो। So this is actually the concept. See, I will talk few things about copyrighted works, क्योंकि वो भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। कॉपीराइट स्टेटमेंट जो होता है किसी भी आर्टिस्टिक वर्क में, उसमें आपको ये सिंबल दिखता है। ये सिंबल के बाद में आपको एक ईयर दिखता है कि कौन से ईयर में इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, और उसके बाद में इंडिविजुअल या कंपनी का नाम रहता है जो कॉपीराइट होल्डर रहता है, जिसके पास में पूरे राइट्स जो है कॉपीराइट के वो सुरक्षित होते हैं, राइट? अभी देखिए, कॉपीराइट एक ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कि अगर आपका ओरिजिनल वर्क है तो आप ऑफिस में रजिस्ट्रेशन किए बिना भी कॉपीराइट होल्डर बन सकते हो बाय स्टेटिंग इट दैट इट इज कॉपीराइटेड वर्क फॉर यू। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। लेकिन अगर आपका वर्क बहुत ही वैल्यूएबल वर्क है, देन यू मस्ट गो टू द ऑफिस एंड गेट द सर्टिफिकेट ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन। नाउ, हाउ टू यूज कॉपीराइटेड वर्क्स, जैसे कि मैंने आपको कहा होगा कोई लेक्चर में कि व्हेन यू यूज गूगल इमेजेस, हम कितना बिंदास में गूगल इमेजेस को यूज करते हैं, लेकिन 70% ऑफ द गूगल इमेजेस आर कॉपीराइटेड। और तब जाके ये मामला बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है जब स्टेटमेंट में ये लिखा होता है कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड विदाउट द परमिशन ऑफ कॉपीराइट ओनर। ये अगर स्टेटमेंट तो इमेज के नीचे लिखा है तो समझो आपको परमिशन लेना ही लेना है। You cannot use those images by just acknowledging or giving the reference. ठीक है, तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
and you can also use the copyrighted works under the fair use criteria, under the fair use criteria. ठीक है, fair use criteria जो है that is for non commercial purpose like research, teaching, learning, ये सब चीजों के लिए you can use copyrighted works, लेकिन under fair use criteria. अभी देखिए व्हाट फेयर यूज क्राइटेरिया इज, उसके पहले हम देखेंगे कि हमारा जो कॉपीराइट का एक्ट है, सबसे पहला एक्ट हमारा 1914 में आया एंड इट वाज फॉलोड बाय 1957, और उसमें अमेंडमेंट अभी होते जा रही है, राइट. नाउ व्हाट कॉपीराइट इज एक्चुअली, it is a form of intellectual property law, and it protects the original works. Okay. And इसमें लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क, देन यू कैन सी आपको जैसे आर्किटेक्चरल वर्क्स है, सिनेमा है, ये सब इसमें प्रोटेक्ट होता है. लेकिन एक चीज को ध्यान में रखिए, इट डज नॉट प्रोटेक्ट फैक्ट्स, आइडियाज, सिस्टम्स एंड मेथड्स ऑफ ऑपरेशन. आई एम रिपीटिंग, it does not protect facts, ideas, systems, and methods of operation. Right? Now, जैसे कि मैंने आपको एक चीज कहा, उदाहरण देती हूँ. मैं सोच रही हूँ कि अमावस की रात है, घना अंधेरा है, मूसलाधार बारिश हो रही है, राइट, बिजलियां कड़क रही है, मेघ गरज रहे हैं, और ऐसे सिचुएशन में एक मर्डर हो जाता है. ओके, एक खून हो जाता है. अभी मैं ये सब सोच रही हूँ, कैन आई प्रोटेक्ट दिस अंडर कॉपीराइट? आई कैन नॉट प्रोटेक्ट दिस अंडर कॉपीराइट. लेकिन ऐसा सोचते हुए, इफ आई एम राइटिंग अ नॉवेल, मर्डर मिस्ट्री, नॉवेल कैन बी प्रोटेक्टेड. दूसरी चीज, ऐसे सिचुएशन का मैं एक फोटोग्राफ निकालती हूँ, दैट फोटोग्राफ कैन बी कॉपीराइटेड. ऐसे सिचुएशन का मैं एक ड्राइंग निकालती हूँ, दैट ड्राइंग कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट. So, what are the actually requirements for getting the copyright? पहली चीज है, it must be your original work, और दूसरी चीज है, it must be fixed in a tangible medium of format. उसको मूर्त स्वरूप में आपको लाना है. केवल आप सोच रहे हो it is just an idea, then it cannot be copyrighted. जब तक वो tangible medium of expression में फिक्स नहीं होता, तब तक मूर्त स्वरूप में नहीं आता, तब तक. सो फ्रेंड्स, अंडर कॉपीराइट आपको कौन से प्रिविलेजेस मिलते हैं? देखिए, इट इज आल्सो कॉल्ड एज नेगेटिव राइट, जो लोगों को रिप्रोड्यूसिंग द वर्क, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क, एडाप्टेशन ऑफ द वर्क, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस करने से रोकता है. दैट मीन्स, अगर आपके कॉपीराइट, आपने एक ड्रामा लिखा है और उसको स्टेज करना है कमर्शियली किसी को, तो उसको आपकी परमिशन लेना अत्यंत आवश्यक है. अदरवाइज 3 इडियट जैसे केसेस जो है वो हो जाती है, राइट. सो आपका मोनोपोली राइट है वो, और अगर आप किसी को परमिशन देते हो, यू कैन क्लेम फॉर रॉयल्टी फॉर दैट. See, this is actually the homepage of our copyright office, which is situated at New Delhi. See, it is copyright.gov.in, और यहाँ से आप पूरा कॉपीराइट के बारे में जान सकते हो. द मोस्ट ऑथेंटिक पेज फॉर कॉपीराइट इन इंडिया. यहाँ से आप ई फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन भी कर सकते हो. अगर आपका कोई किताब है तो आप यहाँ से ई फाइलिंग भी कर सकते हो. ठीक है. देखिए, अगर आप फाइल करते हो तो वो, ये बहुत सारी स्टेजेस होती है, वो स्टेजेस में से गुजरता है, और फिर आपको कॉपीराइट का सर्टिफिकेट जो है वो मिलता है, राइट. फिर हम आगे चलेंगे. हर एक आर्टिस्टिक वर्क के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट की फीस होती है. वो अलग अलग फीस है, दैट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट. नाउ, हाउ कैन वी यूज copyrighted works for our research purpose? That is important. And I have already told you there is a clause in our act regarding fair use. Actually, आप यहाँ पे देख सकते हो कि fair use में
परमिशंस, जहाँ पे परमिशन लेना है वहां पे परमिशन लेना ही पड़ेगा आपको। दूसरा, अगर ऑथर रॉयल्टी मांगता है यू विल हैव टू पे द फीस। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट्स और लाइसेंसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, राइट। So, fair use actually is an exemption to copyright law. But fair use does not allow use of another's entire work. आप बोलेंगे कि नॉन कमर्शियल पर्पस है तो मैं पूरा के पूरा काम उसका यूज करूंगा, नहीं। entire work you cannot use. Fair use does not allow use of any part of another's work without attribution. यानी आप कोई पोर्शन लेते हो तो एट्रीब्यूशन लेना बहुत जरूरी है अंडर फेयर यूज ऑल्सो। So, fair use allows you to use parts of another's copyright work without permission or charge, provided that you attribute these parts to their creator. यानी रेफरेंस देना अत्यंत आवश्यक है। Now, for use to be fair, क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहला क्राइटेरिया, ओनली स्मॉल पोर्शंस ऑफ कॉपीराइटेड वर्क्स कैन बी यूज्ड, दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ ब्रेविटी। The user must not have had time to obtain the permission, that is spontaneity। जैसे आपका थीसिस है, अभी सबमिट करना है और उतना टाइम नहीं है परमिशन लेने का, तो आप वहां पे उनको ईमेल डाल दो और उनको कहना कि we have just used it with brevity for research purpose, for thesis purpose only, okay। ये लिखना वहां पे जरूरी होता है। देखिए, आप जो यूज कर रहे हो कॉपीराइटेड वर्क का, दैट शुड नॉट अफेक्ट द इनकम ऑफ द कॉपीराइट होल्डर। जैसे मेरी किताब है, उसके 2000 रुपए मार्केट में मिल रही है, मेरा पब्लिशर मुझे 20% रॉयल्टी देता है, यानी पर कॉपी आई गेट 400 रुपीज, राइट। अगर आप उसको जाके मार्केट में फोटोकॉपी करके यूज कर रहे हो, दैट मीन्स मेरा इनकम हैम्पर हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है तो दैट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर फेयर यूज, ओके। सो क्लेम्स ऑफ फेयर यूज जो होता है, इट इज इवैल्यूएटेड ऑन पर्पस, दैट इज कमर्शियल और नॉन कमर्शियल पर्पस, नेचर, then third one is amount, how many portion you have used, and the effect of use on the copyright owner's income, okay? तो ये चार क्राइटेरिया फेयर यूज को डिसाइड करती है। Now, criticism, commentary, news reporting, teaching, scholarship and research, इन चीजों के लिए आप फेयर यूज में कॉपीराइटेड वर्क्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ओके, अंडर फेयर यूज क्राइटेरिया। नाउ, जो ब्रेविटी क्राइटेरिया मैंने आपको कहा, दैट इज ओनली स्मॉल पोर्शंस कैन बी टेकन। अभी ये स्मॉल पोर्शन की जो व्याख्या है वो आपके लिए एक पैराग्राफ होगी, मेरे लिए एक पेज होगा, किसी और के लिए 2 पेज होगा, किसी और के लिए 10 पेज होगा। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल लेवल पे और उन्होंने एक रिजोल्यूशन दिया था कि फेयर यूज में कितना यूज अलाउड है। तो उसमें उन्होंने कुछ रिजोल्यूशंस दिए, 10% और 3 minutes विच एवर इज लेस ऑफ अ मोशन पिक्चर, 10% और 1000 words whichever is less of a textual material, 10% और 30 सेकेंड whichever is less of music, ओके। तो इनके पूरे रिजोल्यूशंस आर अवेलेबल ऑन गूगल, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ ब्रेविटी, दैट इज ओनली स्मॉल पोर्शंस कैन बी टेकन फ्रॉम कॉपीराइटेड वर्क्स विद प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट्स। अभी देखिए, व्हेन द वर्क इज कॉपीराइटेड, देन there are two bundles the author is getting. That is, first one is economic rights. Under economic rights, reproduction, publication, then performance, communication to the public, translation, adaptation, assignments. तो ये सब के लिए आपको you can claim for royalty. Okay, economic rights ये सबको पता है, लेकिन there is one more right under copyright, and that is moral right, that is also called as author special rights। और एक चीज ध्यान में रखिए, ये जो ऑथर स्पेशल राइट्स जो
हमारे कानून में लिखा है, हमारा कॉपीराइट एक्ट में लिखा है, तो वो प्लेजरिज्म करने में भी मदद करती है। कैसे, हम वो देखेंगे। देखिए, अंडर मोरल राइट्स अदर देन इकोनॉमिक राइट्स देर आर सम मोरल राइट्स आल्सो इन कॉपीराइट बंडल। उसमें आता है राइट टू पैटर्निटी एंड राइट टू इंटीग्रिटी। राइट टू पैटर्निटी मीन्स यू कैन क्लेम ऑफ ऑथरशिप ऑफ योर वर्क एनी टाइम। देखिए, जैसे हम एक बुक लिखते हैं, आई एम द ऑथर, लेकिन मैं मेरा कॉपीराइट ट्रांसफर करती हूँ पब्लिशर को, लेकिन ट्रांसफर करने के बाद में भी अंडर ऑथर स्पेशल राइट मैं हमेशा क्लेम कर सकती हूँ मेरे ऑथरशिप का। देन राइट टू इंटीग्रिटी मीन्स अंडर दिस राइट व्हाट यू गेट, that is the right to restrain or claim damages in respect of any distortion, mutilation, modification or other act। मतलब आपकी कलाकृति को कोई डिस्टॉर्ट करता है, म्यूटिलेट करता है या मॉडिफाई करता है, देन यू कैन क्लेम फॉर डैमेज चार्जेस फॉर इट if your work is copyrighted। Okay, so this is the moral rights। अभी इसके लिए एक सीधा सा केस स्टडी मैं आपको बताऊंगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दिख रहे हैं एंड द मैन हियर इज अमरनाथ सहगल। ये ब्रॉन्ज की मुरल्स बनाते थे। 1957 में दिल्ली में जो विज्ञान भवन है, तो उसका रिनोवेशन करना था, तो उसके ग्राउंड फ्लोर में प्रस्तावित करने के लिए एक ब्रॉन्ज की मुरल बनाने का काम इनको दिया गया था। 1962 में इन्होंने 40 फीट बाय 140 फीट की एक स्कल्पचर बनाया और वो वहां पे प्रस्तावित किया गया। लेकिन कुछ साल के बाद में 1979 में उसी बिल्डिंग का फिर से रिनोवेशन निकला, तो द देन अथॉरिटीज जो थे उन्होंने वो स्कल्पचर को वहां से निकाला और स्टोर रूम में डंप कर दिया। जब इनको पता चला तो इनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अंडर ऑथर स्पेशल राइट्स दैट इज मोरल राइट्स में उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया में दावा ठोका और उस वक्त में उन्होंने 50 लाख रुपीस डैमेज चार्जेस मांगे। कोर्ट में केस गई। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि यस, ऑथर के, आर्टिस्ट के मोरल राइट्स जो है वो वायलेट हो चुके हैं, सो पे द डैमेजेस और उनका जो वर्क है उनको सम्मान के साथ वापस कर दो। सो दिस इज द केस ऑफ मोरल राइट्स। देखिए, जैसे इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट का एक और अच्छा केस बताती हूँ, क्रेजी 4 केस। The case is between Ram Sampath versus Rakesh Roshan and Rajesh Roshan, 2008 बॉम्बे। इसमें क्या है कि क्रेजी 4 का जो टाइटल सॉन्ग था, इट वाज पिक्चराइज्ड ऑन शाहरुख खान एंड ऋतिक रोशन। ओके, तो ये पर्टिकुलर सॉन्ग में एक पीस ऑफ म्यूजिक था जो राम संपत ने कंपोज किया था सोनी एरिक्सन मोबाइल एडवर्टाइजमेंट के लिए। ये फ्राइडे को फिल्म रिलीज होने वाली थी, तो मंडे राम संपत कोर्ट में गए और उन्होंने इस पीस ऑफ म्यूजिक के लिए डैमेज चार्जेस मांगे 4 करोड़ रुपीस। ओके, कोर्ट ने भी आदेश दिया कि फिल्म कैन नॉट बी रिलीज्ड विद दिस इन्फ्रिंज्ड पीस ऑफ म्यूजिक। तो थर्सडे में उनका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ इन 2 करोड़ एंड देन द फिल्म वाज रिलीज्ड। अभी देखिए, एक कॉमन मैन जो होता है, हमारे यहाँ पे आईपीआर के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। कॉमन मैन होता है, उसको कॉपीराइट का ये जो मतलब गुनाह है वो समझता ही नहीं। तो ये अनअवेयरनेस की वजह से कभी कभी ऐसे केसेस भी हो जाती है। ये केस है जेके रावलिंग, जो हैरी पॉटर का कॉपीराइट ओनर है, वर्सेस सॉल्ट लेक दुर्गा पूजा कमेटी कोलकाता। कोलकाता में एक जगह है सॉल्ट लेक, वहां पे दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। उन्होंने क्या किया कि दुर्गा पूजा का ये जो पेंडल बनाया है, इट वाज रिक्रिएशन ऑफ हैरी पॉटर्स हॉगवर्ट्स कैसल, और उसके ऊपर उन्होंने ये चित्र यूज किए। तो जेके रावलिंग जो कॉपीराइट ओनर है हैरी पॉटर का, उन्होंने वो दुर्गा पूजा कमेटी पे 20 लाख का डैमेज चार्जेस थोप दिए। अभी
पूजा कमेटी के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? सो दे वर रेडी टू पुल डाउन द पेंडोर, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इट इज रिलीजियस सेरेमनी, the committee could continue with the pandal till puja and to file an undertaking stating that they would not use any character from the book without the permission in future. यानी उनको दिल्ली हाई कोर्ट वालों को एक डिक्लेरेशन देना पड़ा उनको, राइट? देन एक और मूवी आई थी, दिस केस इज बिटवीन वाडिया मूवी लोन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस विशाल भारद्वाज, 2017 की है केस। एक फिल्म रिलीज हुई थी 1930s में, हंटर वाली, और उसमें एक यूनिक कैरेक्टर था फियरलेस नादिया, अ स्टंट वुमन का, और वो कैरेक्टर कॉपीराइटेड था। ओके, उसके बाद में क्या हुआ, रंगून फिल्म आई 2016 में, जिसमें कंगना राणावत थी लीडिंग रोल में, और उसके कैरेक्टर का नाम था जानबाज जूली। लेकिन यहाँ पे कॉपीराइट कंट्रोवर्सी हो गई, और हुआ ऐसे कि जो कॉपीराइट कैरेक्टर जो था जानबाज जूली, इट वाज कॉपीड फ्रॉम द फियरलेस नादिया, जो कॉपीराइटेड था। द कॉस्ट्यूम, द कैरेक्टर स्केच, द स्टाइल ऑफ walking, then wearing a mask, a whip, being a stunt woman, and using the phrase bloody hell, everything was copied from fearless Nadia character. अभी यहाँ पे क्वेश्चन आया कि वेदर इट इज इन्फ्रिंजमेंट। कोर्ट ने कहा कि यस, इट इज सब्सटैंशियल कॉपिंग ऑफ द कैरेक्टर, और उसके लिए क्या हुआ, तो उनको बैंक गारंटी ऑफ 2 crores देना पड़ा। देन एक गजनी मूवी आई थी, आप सबको पता है, उसमें टेम्पररी मेमोरी लॉस जो है वो हीरो का होता है। तो गजनी का तमिल वर्जन जो 2005 में आया था, उसमें वो जो हीरो है टेम्पररी मेमोरी लॉस वाला, वो अपने वाइफ के मर्डर का रिवेंज लेने निकलता है। लेकिन ये जो हिंदी मूवी आई थी, उसमें वो अपने गर्लफ्रेंड के लिए बाहर निकलता है। ओके, सो यहाँ पे भी क्या है कि एग्जैक्ट कॉपिंग वाज देयर। देन एक और चीज आपको मैं बता दूं कि अगर आप कॉपीराइट वायलेशन करते हो, कॉपीराइटेड वर्क्स का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हो, तो इट इज ट्रीटेड एज क्रिमिनल ऑफेंस। इसके लिए 3 साल की जेल हो सकती है, अप टू 3 years, और फाइन हो सकता है, दैट इज नॉट लेस देन 50,000, may extend to 2 lakhs। तो ये चीजें एक रिसर्चर को पता होनी चाहिए, कॉपीराइटेड वर्क्स को हमें किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। यू शुड बी ऑलवेज सतर्क होना चाहिए आपको, जब आप कॉपीराइट का सिंबल किसी भी वर्क पे देखते हो। आपको बिल्कुल उसके तह तक जाके देखना है कि ये कॉपीराइट कहाँ तक सीमित है और मैं इसका कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, राइट? देखिए, मैंने आपको ओपन एक्सेस का लेक्चर दिया था, उसमें बताया था कि ओपन एक्सेस के ऊपर में भी आप क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसिंग सिस्टम्स लागू कर सकते हो। तो ये इसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे जो पब्लिक डोमेन में होता है, कॉमन नॉलेज होता है, तो उसको कॉपी पब्लिश कर सकते हो, उसका कमर्शियल यूज कर सकते हो, यू कैन मॉडिफाई एंड अडेप्ट, यू कैन चेंज द लाइसेंस, और इस सब के लिए रेफरेंस देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो इंफॉर्मेशन वेब पे अवेलेबल है और उसमें सीसी बाय का लाइसेंस है, सीसी यानी क्रिएटिव कॉमन्स बाय, तो इसमें आपको एट्रीब्यूशन भी जरूरी है। आप कॉपी पब्लिश कर सकते हो, कमर्शियल यूज कर सकते हो, मॉडिफाई एडिट कर सकते हो, लाइसेंस भी चेंज कर सकते हो। लेकिन सीसी बाय ऐसे है, ऐसे स्टैंड्स फॉर शेयर अलाइक, ओके? तो इसमें आप लाइसेंस नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है? बाकी सब कर सकते हो। बाय एनडी है, तब एट्रीब्यूशन नो डेरिवेटिव्स। तो इसमें क्या है, आपको एट्रीब्यूशन देना जरूरी है, बट आप उसको मॉडिफाई और अडेप्ट नहीं कर सकते। सीसी बाय एनसी जो है नॉन कमर्शियल,
तो उसमें आप कमर्शियल यूज उसका नहीं कर सकते, नॉन कमर्शियल यूज के लिए यूज कर सकते। बाय एनसीएसए है, दैट इज नॉन कमर्शियल शेयर अलाइक। तो इसमें आप दो चीजें नहीं कर सकते, कमर्शियल यूज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज द लाइसेंस। बाय एनसीएनडी है, दैट मीन्स नॉन कमर्शियल नो डेरिवेटिव्स। तो इसमें आप कमर्शियल यूज नहीं कर सकते, मॉडिफाई अडॉप्ट नहीं कर सकते। सो ओपन एक्सेस के ऊपर में भी आपको ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस जो है वो आपको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। नाउ आई एम कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेजारिज्म। व्हाट प्लेजारिज्म इज? Actually, plagiarism is the act of presenting another's works or ideas as your own, right? The word plagiarism comes from the Latin word plagiaris, और उसका मीनिंग होता है किडनैपर। What plagiarism is? देखिए, इसमें एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। Plagiarism is the act of presenting the words, ideas, images, sounds, or the creative expression of others as your own. देखिए, वर्ड्स, आइडियाज, इमेजेस, साउंड्स। देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइडियाज। देखिए, मैंने अगर आपके पूरे क्लास को बताया कि डीमोनेटाइजेशन के ऊपर में 5 मिनट में लिखो, आप जो भी लिखना चाहते हो, तो एक ग्रुप ऐसा होता है तो फट 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 अपना स्मार्टफोन निकालता है और डिमोनेटाइजेशन कौन से दिन हुआ वो डेट निकाली, इसका व्यू क्या है, उसका व्यू क्या है, 4-5 आर्टिकल्स पढ़ लिए और फिर अपनी भाषा में उसको लिख लिया। ओके। दूसरा ग्रुप ऐसा होता है कि वो अपने फोन को हाथ ही नहीं लगाता, उसको डिमोनेटाइजेशन बारे में क्या कॉन्सेप्ट है और क्या पता है, उसी को वो लिखता है। अभी जो ग्रुप ने स्मार्टफोन यूज किया, 4-5 आर्टिकल्स पढ़े, लेकिन उन्होंने शब्द तो कॉपी नहीं किए, लेकिन वहां से आइडियाज लिए और रेफरेंस नहीं दिए, तो उनका जो काम है वो प्लेजरिज्म में जाता है। और दूसरा जो ग्रुप था जिन्होंने खुद को जितना पता है उतना ही लिखा, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, तो दे हैव यूज्ड द कॉमन नॉलेज। तो उन्होंने रेफरेंस नहीं दिया किसी का तो चलता है, लेकिन इन्होंने जहां से आइडिया उन्होंने बोरो किया और वो रेफरेंस नहीं दे रहे, दैट मीन्स दे आर डूइंग प्लेजरिज्म, राइट। आगे चलते हैं। व्हाट प्लेजरिज्म इज? इट इज इंटेलेक्चुअल थेफ्ट, it is improper use of others writings, ideas, artistic expressions, etc., presenting the works of another as one's original work। control A, control C, control V। okay, then failing to credit। देखिए, आप एट्रीब्यूशन देना मत भूलिएगा, साइटेशंस देना मत भूलिएगा। अगर आप इनकम्प्लीट साइटेशन देते हो तो भी इट इज द एक्ट ऑफ प्लेजरिज्म। देन प्लेजरिज्म का एक इंटरेस्टिंग डेफिनेशन मिला मुझे, एब्रिविएशन P for poor documentation, used control on textual meaning, act of demoralizing, getting poor reputation of the country, informing the wrong history, act of malpractice, risky literature, invisible referencing, selecting horrific writing and meaningless paraphrasing। देखिए, ये सब चीजें जो है वो अलग अलग एस्पेक्ट्स है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म इज समटाइम्स knowingly done, मुझे पता है कि ये मैं जो कर रही हूँ प्लेजरिज्म में आता है, पता है मुझे। इट इज कॉल्ड एज इंटेलिजेंट प्लेजरिज्म। मैं क्या करती हूँ, उसको छुपाने के लिए मैं सॉफ्टवेयर के लिमिटेशंस ढूंढती हूँ। दूसरा, एक्सीडेंटली हो जाता है, कभी कभी कोड डालना भूल जाते हैं, कभी कभी साइट करना भूल जाते हैं। ओके, सो these two types of plagiarism आपको दिखते हैं। व्हाट प्लेजरिज्म इज? एक्चुअली अभी तक क्या था, अभी तक प्लेजरिज्म एक सीरियस एकेडमिक ऑफेंस था। उसमें पनिशमेंट क्या होती थी? वार्निंग मिलती थी, आपका जो भी वर्क है उसको रीसबमिशन मिलता था, आपको फेलियर घोषित किया जाता था, रीसबमिशन करना पड़ता था। ओके, तो ये स्कूल कॉलेजेस में ये सब चलता था। बट नाउ यूजीसी हैज टेकन स्ट्रॉन्ग स्टेप्स टू कर्ब द प्लेजरिज्म इन हायर एजुकेशन रिसर्च, और वो हम देखेंगे। और शायद आपका जो एकेडमिक इंटीग्रिटी का लेक्चर हुआ उन्होंने भी वो लिया था, तो आई विल नॉट गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट, लेकिन हम सिर्फ उसको टच करके आगे चलेंगे। देखिए,
दिस इज जस्ट अ फिलर. बॉस कहता है सबऑर्डिनेट को मुझे प्लेजरिज्म का रिपोर्ट सबमिट करो. और ये क्या करता है, वो इंटरनेट पे जाता है और प्लेजरिज्म का ही प्लेजराइज रिपोर्ट बना के लाता है. राइट. तो इस प्रकार से भी केसेस होते हैं. देन टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म. वर्ड फॉर वर्ड. वर्ड फॉर वर्ड का मतलब क्या है कि डायरेक्ट. डायरेक्ट यानी डिक्टो. डिक्टो आप उसको कॉपी करो और पेस्ट करो. दैट इज वर्ड फॉर वर्ड. डायरेक्ट प्लेजरिज्म. दुसरा होता है मोझेक. मराठीमध्ये आपण म्हणतो ना की तिगळं लावणं. ओके. मतलब यहाँ से दो लाइन लिया, वहां से एक फ्रेज लिया, वहां से एक और कोटेशंस डालना भूल गए. ओके. तीसरा होता है थिजोरस. दैट इज पैराफ्रेजिंग. देखिए आपका क्या होता है एक्चुअली. थिजोरस का मतलब क्या होता है कि थिजोरस में आपको पूरे रिलेटेड वर्ड्स, ब्रॉडर वर्ड्स, नैरोअर वर्ड्स सब एक जगह मिल जाते हैं. So people use such tools to paraphrase. यानी सॉफ्टवेयर पकड़ता क्या है, सॉफ्टवेयर वैसे के वैसे सेंटेंसेस आपको पकड़ता है. राइट. सिमिलैरिटी. तो थिजोरस आप यूज करेंगे, टेक्निकल वर्ड्स को बदल देंगे. लेकिन पैराफ्रेजिंग जो होता है, पैराफ्रेजिंग करने के बाद में भी जैसे कि मैंने आपको डीमोनेटाइजेशन का उदाहरण दिया, यू हैव नॉट यूज्ड द वर्ड्स ऑफ दोज पर्सन्स बट यू हैव बोरोड द concepts, आइडियाज. तो आपको पैराफ्रेजिंग करने के बाद में भी रेफरेंसेस देना अत्यंत आवश्यक होता है. when you copy the ideas from others, you are not borrowing the words but you are borrowing the ideas. then also attribution is must. okay. अगर आप attribute नहीं करते हो तो that is again the act of plagiarism. then authorship. ऑथरशिप एंड सेल्फ प्लेजरिज्म. ये दो चीजें जो है एक में आता है. जैसे मेरा एक प्रीवियस पेपर पब्लिश हो गया, उसी में से मैं दो चार टेबल उठा के दूसरा पेपर करती हूँ विदाउट एक्नॉलेजिंग माय प्रीवियस पेपर. दैट इज सेल्फ प्लेजरिज्म. ओके. वी विल सी ऑल दिस. जैसे डिक्टो प्लेजरिज्म, डायरेक्ट प्लेजरिज्म जो होता है, दैट मीन्स कंट्रोल ए कंट्रोल से कंट्रोल बी. ओके. और खुद का नाम वहां पे दे दो. तो कभी ये नहीं करना. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्बैटिम प्लेजरिज्म एज इट इज. जो सेकंड प्लेजरिज्म है उसमें क्या करता है, प्लेजराइजर जो होता है ही borrows the phrases and clauses from original source and weaves them into his own writing without putting the phrases in quotation marks or citing the author. Okay. So this is patchwork. Plagiarism, paraphrasing I told you. सेल्फ प्लेजरिज्म के बारे में मैं आपको और बताना चाहती हूँ थोड़ा सा. नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी. राइट. देखिए ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड ऑन 20th अप्रैल 2020 यूजीसी ने एक पब्लिक नोटिस निकाली. राइट. दैट इज उन्होंने क्या कहा कि रिप्रोडक्शन इन पार्ट और होल ऑफ वंस प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क without adequate citation and proper acknowledgement and claiming the most recent work as new and original for any academic advantage amounts to text recycling. Okay. uh, just a second. Okay. So उन्होंने सेल्फ प्लेजरिज्म को टेक्स्ट रिसाइकलिंग ये शब्द दिया है एंड दिस वर्ड दे हैव बोरोड फ्रॉम पोप गाइडलाइंस. पोप की जो गाइडलाइंस मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में कि यूजीसी इज फॉलोइंग पोप गाइडलाइंस, तो टेक्स्ट रिसाइकलिंग वर्ड उन्होंने वहां से लिया है. उन्होंने क्या कहा, टेक्स्ट रिसाइकलिंग इंक्लूड्स रिपब्लिशिंग द पेपर विदाउट साइटेशन. वही पेपर दूसरी बार रिपब्लिश कर रहे हो आप विदाउट गिविंग द citation to your previous work. Then publishing small work from longer and previous work without citation. And reusing the data already used without citation. आपके थीसिस का डेटा है, आपने उसको ऑलरेडी एक पेपर में यूज किया है, अगेन यू आर यूजिंग एंड नॉट गिविंग द citation to your previous paper. Then breaking up longer study in smaller sections and publishing as a new without citation.
देन पैराफ्रेजिंग ऑफ प्रीवियस वर्क विदाउट ड्यू साइटेशन। तो ये सब जो एक्ट्स है, these are the acts considered under self plagiarism, that is the word text recycling. Now see, since 2009 जहां से हमारे एपीआई शुरू हो गए, मार्किंग सिस्टम आ गया, ये प्लेजरिज्म वर्ड जो है वो बढ़ते गया। So what are the steps UGC has taken for prevention of plagiarism in India? तो सबसे पहले उन्होंने मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ एमफिल एंड पीएचडी डिग्री इशूड ऑन 1 जून 2009। ठीक है, उन्होंने 2009 में ही यूजीसी ने पूरे इंडियन यूनिवर्सिटीज को बताया कि आप एक आपकी एंटी प्लेजरिज्म पॉलिसी बनाओ, और उन्होंने प्लेजरिज्म चेक को और अपलोडिंग द थीसिस ऑन शोधगंगा को उन्होंने मैंडेटरी किया। दिस इज शोधगंगा, यू ऑल नो, ये अवार्डेड थीसिस इतने हैं, फुल टेक्स्ट थीसिस। और उसके बाद में 2014-15 में इनफ्लिबनेट जो ऑटोनोमस संस्था है यूजीसी के अंडर, Flipnet gave access to 110 universities for Authenticate and Turnitin. See, Authenticate and Turnitin दो commercial plagiarism detecting software है. Turnitin is very powerful software. Then 2015-16 में Inflibnet provided Urkund. अभी जो आपका चल रहा है plagiarism check के लिए authorized software by UGC is Urkund. Then September 2019 को उन्होंने 1000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को उर्कुंड का एक्सेस दिया। देन सितंबर 2019 में ही उन्होंने शोध शुद्धि पोर्टल बनाया, जहां से am I audible? Yes, madam. Madam. Yes, madam. ओके ओके, तो शोध शुद्धि नाम का पोर्टल बनाया, जहां से उन्होंने उनके मेंबर्स जो भी बनते हैं शोध शुद्धि के, वो ऑर्गेनाइजेशंस को उर्कुंड का लॉगिन ऑनलाइन दिया है। ओके, उसके बाद में इसके बारे में आपको बताया होगा, एकेडमिक इंटीग्रिटी का ये डॉक्यूमेंट आपको प्रीवियस रिसोर्स पर्सन ने दिया होगा, लेकिन मैं ये पूरा समझाऊंगी नहीं आपको। दिस इज 23 जुलाई 2018 का है, द मोस्ट रिसेंट वन जो अभी चल रहा है। उसमें से जो क्लॉज नंबर 6 है, उसी को मैं आपको बताना चाहूंगी, दैट इज कर्बिंग प्लेजरिज्म। उसमें उन्होंने 6-7 पॉइंट्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शैल डिक्लेयर एंड इम्प्लीमेंट द टेक्नोलॉजी बेस्ड मैकेनिज्म यूजिंग अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर। यानी पहले इसमें उन्होंने क्या बताया, जो भी रिसर्च पब्लिकेशन है आपके इंस्टीट्यूट के फैकल्टी के या रिसर्च स्कॉलर्स के, तो उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बेस्ड मैकेनिज्म यानी सॉफ्टवेयर उन्होंने लेना चाहिए जो यूजीसी रिकमेंड करती है, और उसमें वो डॉक्यूमेंट्स चेक करना चाहिए, एंड दे शुड अश्योर दैट इट इज फ्री फ्रॉम प्लेजरिज्म एट द टाइम ऑफ देयर सबमिशन। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो सॉफ्टवेयर आप लोगे, उसका एक्सेस जो है आपके स्टूडेंट, फैकल्टी, रिसर्चर और स्टाफ जो भी रिसर्च में इंक्लूड है वो देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, एवरी स्टूडेंट सबमिटिंग अ थीसिस और डिसर्टेशन, ओके, तो उन्होंने एक अंडरटेकिंग देना चाहिए कि ये ओरिजिनल है, और दूसरी चीज फ्री फ्रॉम एनी प्लेजरिज्म है, मतलब स्टूडेंट के अंडरटेकिंग में वो आना चाहिए। देन the undertaking shall include the fact that the document has been checked through plagiarism detecting tool approved by HEI, यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने जिसको अप्रूव किया है उसी सॉफ्टवेयर में से किया है, राइट, एंड एज ऑन टुडे इट इज उर्दू। फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शैल डेवलप अ पॉलिसी ऑन प्लेजरिज्म, ओके, हर एक यूनिवर्सिटी की एक पॉलिसी होना चाहिए प्लेजरिज्म की, और वो पॉलिसी उनके होम पेज में आना चाहिए, होम पेज ऑफ द वेबसाइट जो है वहां पे उसकी लिंक आनी चाहिए। देन केवल स्टूडेंट का अंडरटेकिंग नहीं चलेगा, तो रिसर्च सुपरवाइजर ने भी अपने सर्टिफिकेट में लिखना चाहिए कि इट इज चेक थ्रू सॉफ्टवेयर एंड इट इज प्लेजरिज्म फ्री, यानी
केवल स्टूडेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, द सुपरवाइजर इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल. ओके. देन जो इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी आपकी, तो आपका थीसिस अवार्ड होने के 1 महीने के अंदर सॉफ्ट कॉपीज इनफ्लिपनेट के पास जानी चाहिए शोध गंगा में अपलोड होने के लिए. और उन्होंने ये भी कहा है कि हर एक यूनिवर्सिटी ने खुद की इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बनाना चाहिए जिसमें उनके फैकल्टी के रिसर्च पब्लिकेशंस अपलोड हो. सो दीज पॉइंट्स दे हैव गिवन फॉर कर्बिंग द प्लेजरिज्म. Now there is one more, that is they have not used the words plagiarism, percentage of plagiarism. They have used the percentage of similarity. Similarity of text कहाँ कहाँ है? So they have used now the term similarity check. Now similarity check करते वक्त क्या क्या आपके थीसिस का पार्ट या आपके रिसर्च पब्लिकेशन का पार्ट एक्सक्लूड करना चाहिए? So here, see, this is very very important for all of us. All quoted work reproduced with all necessary permissions. Quoted works means double quote में आपने जितना लिखा है और जिसका आपने प्रॉपर रेफरेंस दिया है वो सबको एक्सक्लूड करना चाहिए प्लेजरिज्म चेक करते वक्त. Then all references, bibliography, table of content, preface, acknowledgement, content page, ये सब जो है उसको भी निकाल बाहर कर देना चाहिए. That should not be checked. Then all generic terms, laws, standard symbols, standard equations जो भी आपने यूज किए हैं, जहाँ पे सॉफ्टवेयर मैकेनिकली आपको सिमिलैरिटी बताएगा, लेकिन ये आपको नहीं ध्यान में लेना है सिमिलैरिटी चेक करते वक्त. ओके. अभी देखिए, उन्होंने एक और कहा है कि अगर एक थीसिस सबमिट हो गया है तो किसी को कंप्लेंट आती है कि ये इसमें कुछ तो भी प्रॉब्लम है, रिसर्च मिसकंडक्ट है, तो उसके लिए डिपार्टमेंटल लेवल एक कमिटी बनानी चाहिए जिसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसके बाद में आपका एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट है और एक सॉफ्टवेयर पर्सन है, और वो उन्होंने इंक्वायरी करके उसकी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को देना चाहिए. दैट इज इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, जिसके चेयरपर्सन होंगे ऑनरेबल वीसी सर, उसमें डीन होंगे, 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, सॉफ्टवेयर पर्सन होंगे. राइट. सो इस प्रकार से यू शुड हैंडल द प्लेजरिज्म केसेस. उन्होंने और भी कहा है कि द रिसर्च शैल बी बेस्ड ऑन ओरिजिनल आइडियाज. वो कहते हैं बहुत ज्यादा कुछ मत लिखो, आपकी ओरिजिनल कंसेप्ट क्या है वो लिखो, एब्स्ट्रैक्ट लिखो, समरी लिखो, हाइपोथेसिस लिखो, ऑब्जर्वेशंस लिखो, रिजल्ट्स एंड रिकमेंडेशंस, इतना ही लिखो. ठीक है, ताकि आपका सिमिलैरिटी परसेंटेज कम आना चाहिए. एंड दे हैव डिसाइडेड द पनिशमेंट्स आल्सो, डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी, परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिग्री ऑफ पनिशमेंट. जैसे if it is thesis and dissertations below 10% है, there will not be any penalty. लेकिन सिमिलैरिटी 10 to 40% के बीच में है तो स्टूडेंट विल हैव टू रीसबमिट द वर्क विद इन 6 months, यानी 6 महीने उसका सबमिशन नहीं लिया जाएगा. More than 40 and less than 60, then student will not be allowed to resubmit the work for 1 year. And more than 60 है तो registration of the students will be cancelled. So this is in case of thesis and dissertations. And what about the research publications? Below 10%, no penalty. But if it is 10 to 40 similarity, then author will have to remove the research work. If it is 40 to 60, then 3-tier penalty will be there. Author will have to withdraw the manuscript. Author will not be given 1 annual increment. And author will not supervise any new student for master's, MPhil, PhD for 2 years. And if it is more than 60%, then also 3-tier penalty. Author will have to withdraw the manuscript. Author will not be given 2 annual increments, and author will not supervise any new student for master's, MPhil, PhD for 3 years. Okay, so these are the punishments suggested by UGC. Okay, now why do people plagiarize? Actually, that is the question. Okay, ignorance, then lack of knowledge on ethics of scholarly writing, ambition, fierce competition, pressure from seniors, then life has become faster.
हमको हर चीज बहुत जल्दी जल्दी चाहिए. ओके, then chances of getting caught or action being taken is slim in universities. लेकिन ये चीज जो है, ये कारण अभी नहीं बचा है, क्योंकि अभी प्लेजरिज्म डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर इतने पावरफुल आ गए हैं कि चोरी पकड़ी जाती है, और उसके लिए सजाएं जो है वो मैंने आपको लास्ट 2 स्लाइड्स में बताई है. सो हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म? सबसे पहले बी ऑनेस्ट इन योर रिसर्च. आपने किसी का काम यूज किया है, साइट द सोर्स. उसके बाद में अगर डेफिनेशंस है, आप कुछ उसमें पैराफ्रेजिंग नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक एज इट इज, देन यूज कोटेशन मार्क्स. ओके, देन डू पैराफ्रेजिंग, इफेक्टिव पैराफ्रेजिंग कीजिए विद प्रॉपर एट्रीब्यूशंस. Then as far as possible present your own ideas and always use plagiarism checker. Okay, now why I am saying you should use the quotation marks, क्योंकि ये उर्दू का रिपोर्ट है. आप देखेंगे 28% सिमिलैरिटी वो दिखा रहा है. अभी यहाँ पे एक बटन है कोट्स. कोट्स को अगर ऑफ कर दिया तो आपने जितना भी मैटर डबल कोट में लिखा है वो चेक नहीं होगा, राइट? ब्रैकेट में लिखा हुआ मैटर चेक नहीं होगा. सो देर आर सम बटन्स गिवन इन द सॉफ्टवेयर जिससे आप उसको ऑफ कर सकते हो. आपका एक ही काम है कि सॉफ्टवेयर जब भी यूज करते हो आप, तो वहां पे यूनिवर्सिटी में या आपके कॉलेज में क्लेरिकल लेवल का पर्सन आपको मैकेनिकल रिपोर्ट निकाल के देता है. ही जस्ट अपलोड्स योर डॉक्यूमेंट और जो रिपोर्ट आता है उसका प्रिंट आउट आपको देता है. बट दैट इज नॉट सफिशिएंट. आपको उस रिपोर्ट को लेके बैठना होगा आपके गाइड के साथ में, आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ में, और जहां जहां कॉमन नॉलेज है उसको ऑफ करना होगा. जहां जहां पे आपने प्रॉपर कोटेशन देके विद ब्रेविटी स्मॉल पोर्शंस लिए हैं उसको ऑफ करना होगा. ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बैठ के करनी पड़ती है, तब ये सिमिलैरिटी का परसेंटेज कम आता है, राइट? नाउ मैंने ये आपको बताया कि कोटेशन मार्क्स यूज करो, साइटेशंस दो. अगर आप टेबल चार्ट डायग्राम कहीं से लेते हो, ओके, तो उसी टेबल के नीचे आप तुरंत लिख दो सर्कुलर ब्रैकेट में आपने कहाँ से लिया है. जहां जहां आपने कॉपीराइटेड वर्क्स की परमिशन ली है तो वो परमिशन लेटर आपके मैन्युस्क्रिप्ट के साथ में जोड़ दो और वहां पे लिखो कि परमिशन हैज बीन टेकन. ठीक है, एंड ऑलवेज स्कोप गाइडलाइंस. अभी देखिए कभी कभी क्या होता है, इंडेंट यूज करना भी जरूरी होता है. कैसे कि आपको एक पोएम है 10 लाइन की, उसका विडंबन करना है, क्रिटिसिज्म करना है, तो आप क्या करते हो कि वो पोएम 10 लाइन की वैसे के वैसे आपके पेपर में देते हो और फिर आप आपके व्यूज लिखना शुरू करते हो, क्रिटिसिज्म. सी, दिस क्रिटिसिज्म पार्ट इज प्योरली योर्स. लेकिन सॉफ्टवेयर क्या बताएगा कि ये 10 लाइन की जो आपने कॉपी की है वो 100% प्लेजरिज्म में आ गया. सॉफ्टवेयर को ये नहीं समझता है कि आपने जो पोएम दी है उसको प्लेजरिज्म करना आपका उद्देश्य नहीं है. आपने उसको रीडर्स के रेडी रेफरेंस के लिए दिए. अगर मैं केवल मेरा क्रिटिसिज्म व्यूज जो है उसको पब्लिश करती हूँ तो वो समझने के लिए वो रीडर पोएम ढूंढने जाएगा क्या? नहीं. सो दैट इज एक्चुअली द रिक्वायरमेंट ऑफ योर पेपर, इसलिए आपने उसको वैसे के वैसे कॉपी किया. सो इन दिस केस यू शुड यूज इंटेंट्स. मतलब लेफ्ट से 1 इंच मार्जिन अंदर करो, राइट से 1 इंच मार्जिन अंदर करो. आप अगर 12 का फॉन्ट यूज कर रहे हो तो उसका 10 का फॉन्ट करो, उसको इटैलिक्स कर दो और नीचे लिख दो रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम, जहां से आपने लिया है वो सोर्स को लिख दो और लिखो वहां पे फॉर रेडी रेफरेंस पर्पस ओनली. ठीक है, तो जो पढ़ रहा है उसको पता चलेगा ये इंटेंट से कि भैया ये इसके नहीं लिखा हुआ है, बाद का जो है वो इसने लिखा है. अभी देखिए कोप का जो वेबसाइट है उसका ये पेज है, publicationethics.org के नाम से ये पेज है. आप देखेंगे यूके का ये डॉक्यूमेंट है, इसमें आपको फ्लो चार्ट्स, गाइडलाइंस, केसेस, ये सब चीजें दी हुई है, राइट? यहाँ पे देखिए मैंने जब प्लेजरिज्म कीवर्ड कोप डॉक्यूमेंट में दिया तो मुझे ये 5 रिजल्ट आए. उसमें देखिए टेक्स्ट रिसाइकलिंग गाइडलाइंस फॉर एडिटर्स, यूजीसी ने यहाँ से ही सेल्फ प्लेजरिज्म के लिए टेक्स्ट रिसाइकलिंग वर्ड
यूज किया है. Then these are all the text recycling guidelines. Then the retraction guidelines are there. Then cooperation between the research institutions and journals. Then editing for new editors, ethical editing. Then principles of transparency and best practices. देन बहुत सारे फ्लो चार्ट्स में उन्होंने जैसे एलिगेशंस ऑफ मिसकंडक्ट है तो आपको कैसे स्टेप वाइज जाना है उसको सॉल्व करने के लिए वो सब चीजें बताई है. ओके. और उन्होंने पॉपुलर केसेस जो प्लेजरिज्म के हुए हैं वो केसेस को उन्होंने यहाँ पे देखिए 618 प्लेजरिज्म केसेस को उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है रेफरेंस के लिए. जैसे एक्सटेंसिव प्लेजरिज्म, डबल प्लेजरिज्म, सस्पेक्टेड प्लेजरिज्म एंड ऑल. See, this is actually the flow chart given step wise. देखिए मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहती हूँ कि कोप ने एक रिट्रैक्शन गाइडलाइंस दिए हैं. ओके. व्हाट डू यू मीन बाय रिट्रैक्शन? रिट्रैक्शन का मतलब है कि आपका पेपर पब्लिश हो गया रिनाउंड जर्नल में. पब्लिश होने के बाद में उसमें एरर पाई गई, उसमें मिसकंडक्ट पाया गया, उसमें फैब्रिकेशन फॉल्सिफिकेशन पाया गया. Then publisher can retract your article. Retraction का मतलब होता है कि उसको पब्लिकेशन स्टेटस से रिमूव करना. आपके वो पेपर के ऊपर में रिट्रैक्टेड कैसे करके वाटरमार्क आता है. तो जब भी वो ऑनलाइन पेपर किसी यूजर को रिट्रीव होता है और उसके ऊपर रिट्रैक्टेड मार्क है, आपको भी बता दूं ऐसे पेपर को का रेफरेंस कभी भी आपके पेपर में नहीं आना चाहिए. अगर आपने रिट्रैक्टेड पेपर्स का रेफरेंस उसको आपने साइट किया आपके पेपर में, आपका पेपर भी रिट्रैक्ट हो जाएगा. ओके. सो रिट्रैक्शन मींस रिमूविंग इट फ्रॉम द पब्लिकेशन स्टेटस. ओके. उसके रिट्रैक्शन के बहुत सारे कारण हैं जो मैं आपको बताऊंगी. सो रिट्रैक्शन इज अ मैकेनिज्म फॉर करेक्टिंग द लिटरेचर. देखिए द मेन पर्पस ऑफ रिट्रैक्शन is to correct the literature and ensure its integrity rather than to punish the author. यहाँ पे ऑथर को पनिश करना ये उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो अगले रिसर्चर तक लिटरेचर जा रहा है वो प्योर होना चाहिए और उसका इंटीग्रिटी होना चाहिए. यही एक उद्देश्य रिट्रैक्शन का होता है. So what retraction is? It is a mechanism for correcting the literature and alerting readers to articles that contain seriously flawed or erroneous content or data that their findings and conclusions cannot be relied upon. Okay? अभी ये चीज जो है रिट्रैक्शन, तो अगर आप गूगल में जाके रिट्रैक्शन वॉच डेटाबेस ये कीवर्ड्स डालेंगे तो आपको ये ओपन एक्सेस डेटाबेस मिलेगा दैट इज बेस्ड ऑन पबमेड डेटाबेस और आप यहाँ पे उसको सर्च कर पाएंगे. जैसे मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट में फूड साइंस डाला तो फूड साइंस के 109 पेपर्स ऐसे हैं जो रिट्रैक्टेड है. ओके. और यहाँ पे आप देखेंगे एल्सवियर, विली, स्प्रिंजर, तो इन लोगों के रेप्यूटेड पब्लिशर्स के पेपर्स भी रिट्रैक्ट होते हैं. फूड साइंस एंड इंडिया डाला तो उसमें 12 पेपर मिले मुझे रिट्रैक्टेड स्टेज पे. यहाँ पे मैंने केवल इंडिया डाला तो इंडिया से 1237 आर्टिकल्स हैव बीन रिट्रैक्टेड. देन आप यहाँ पे एल्सवियर पब्लिशर मैंने डाला तो एल्सवियर के आप यहाँ पे देखेंगे ये जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा है. 3184 पेपर्स पब्लिश होके फिर रिट्रैक्ट हुए. राइट. अभी रिट्रैक्शन के कारण होते हैं, ये पूरे कारण है. देखिए ब्रीच ऑफ पॉलिसी बाय ऑथर, ऑथर अनरिस्पॉन्सिवनेस, देन साइट्स प्रायर रिट्रैक्टेड वर्क जो मैंने बताया आपको, civil proceedings, complaints about author, complaints about company, third party, then concerns and issues about authorship, data, image, referencing, attribution, results, then conflict of interest, then you can see uh, copyright claims, then criminal proceedings, and then you can see duplication of article, data, image, text, error by journal, publisher, third party, peer reviewer, data, image, material, method, error in text, ethical violation by author, then duplication of work, then you can see fake peer review, falsification, fabrication of data, image results, then forged authorship, hoax paper, then आप देखेंगे यहाँ पे मैनिपुलेशन ऑफ इमेजेस, मैनिपुलेशन ऑफ रिजल्ट्स,
miscommunication by author, then misconduct by author, then you can see here objections by authors, then plagiarism of data, plagiarism of article, image, text, then publishing ban, then you can see some more, that is unreliable data, image, results, एंड सो ऑन. सो ये सब कारण है रिट्रैक्शन के. फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग. मेरे पास में एक केस आई थी सॉल्व करने के लिए. एक एल्सवेयर का जर्नल था, उसमें उनका एक पेपर आया था, 2 लोगों का पेपर था वो, और उनमें से एक जो थे वो वीसी के लिए, वीसी पोस्ट के लिए कैंडिडेट थे. ओके, मतलब वो वीसी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले थे, लेकिन उनके स्टूडेंट के साथ में उनका एक पेपर जो था वो रिट्रैक्शन वॉच डेटाबेस में है अभी भी. ओके, तो वो पेपर रिट्रैक्ट क्यों हुआ? एल्सवेयर के जर्नल में पब्लिश हुआ था. तो जैसे उनका पेपर पब्लिश हो गया, वो उन्हीं के सब्जेक्ट के किसी और ऑथर ने पढ़ा और उन्होंने कहा कि मेरे प्रीवियसली पब्लिश्ड पेपर से इन्होंने एक इमेज उठाई है, तो वो प्लेजरिज्म है करके उन्होंने एडिटर को चिट्ठी लिखा है एल्सवेयर. ओके, तो एल्सवेयर ने ऑथर को पूछा कि आपने ऐसा किया क्या? तो ऑथर ने डिपेंड में कहा कि मैंने ली है, लेकिन आई हैव गिवन द फुल रेफरेंस विथ एपीए स्टाइल. ओके, पूरा रेफरेंस मैंने दिया है. तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा जर्नल कॉपीराइटेड है और वो कॉपीराइटेड होने की वजह से मेरा पेपर कॉपीराइटेड है, और उन्होंने वो इमेज कॉपी करने के लिए मुझसे परमिशन नहीं मांगी. केवल एट्रीब्यूशन इज नॉट सफिशिएंट, उन्होंने मेरी परमिशन लेना था, क्योंकि वो इमेज पर लेने के लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया और वो सॉफ्टवेयर के तहत मैंने वो इमेज बनाई. तो मेरा इतना सारा जो कष्ट है वो इन्होंने इजीली कॉपी कर लिया, तो उनको पनिशमेंट होनी ही चाहिए. सो दैट पेपर वाज रिट्रैक्टेड फ्रॉम द पब्लिकेशन स्टेटस. एल्सेवियर ने उसको रिट्रैक्ट किया. सो फ्रेंड्स, ये रिट्रैक्शन इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू नाउअडेज दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ अंडर प्लेजरिज्म. ओके, नाउ देखिए, कोरोना जो आया, कोविड-19, तो बहुत सारा रिसर्च पब्लिश हुआ, लेकिन जितनी गति से वो रिसर्च पब्लिश हुआ उतनी गति से वो रिट्रैक्ट भी हुआ. सो कोरोना वायरस के रिट्रैक्टेड पेपर्स आप यहाँ पे देखेंगे. देखिए, दिस मेनी पेपर्स हैव बीन रिट्रैक्टेड. अभी आपको एक चीज बता दूं, ये जो प्लेजरिज्म होता है या एथिकल एस्पेक्ट होता है, उसमें और एक चीज होती है, दैट इज कोलैबोरेशन. जैसे कोलैबोरेशन करते हैं, इट्स ओके, बट इट शुड बी एथिकल कोलैबोरेशन. उसमें सबका फायदा है, एक्सपर्टाइज शेयर होता है, राइट. नए नए सॉल्यूशंस आते हैं और उसका फायदा जो होता है वो इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और बिजनेसेस को होता है. लेकिन यहाँ पे एक केस है. For an individual class assignment, two authors A and B decide to collaborate. A and B ने ये किया कि हमें पेपर लिखते हैं, हम कोलैबोरेट करते हैं. ए ने क्या किया? रिसर्च नोट्स कंपाइल किए. बी ने क्या किया? मेन फाइंडिंग्स जो है वो लिखी. और दोनों ने क्या किया? एक दूसरे का डेटा यूज करके अपना अपना अलग अलग रिसर्च पेपर बनाया. दिस इज रॉन्ग. This is the case of unethical collaboration as well as plagiarism. Okay, and it is not at all accepted. So, what is research misconduct? Research misconduct में 3 चीजें आती है. एक है फैब्रिकेशन, दूसरा है फॉल्सिफिकेशन, तीसरा है प्लेजरिज्म. इन कौन से स्टेज में रिसर्च के? इन प्रपोजिंग, परफॉर्मिंग, रिव्यूइंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स. या ये 4 जो रिसर्च के फेजेस होते हैं, प्रपोजिंग, परफॉर्मिंग, रिव्यूइंग एंड रिपोर्टिंग, ये 4 फेजेस में फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन और प्लेजरिज्म पाया जाता है, तो उसको हम रिसर्च मिसकंडक्ट के नाम से जानते हैं. नाउ fabrication, falsification and plagiarism, these are 3 cardinal sins in research misconduct. What fabrication is? Fabrication is construction and or addition of data, observations,
characters that never occurred in gathering of data. मतलब आप फॉल्स डेटा बनाते हो, डेटा को फैब्रिकेट करते हो, जो एक्चुअली आपका जो रिसर्च चल रहा है उसमें कभी आपको वो डेटा मिला ही नहीं, वो फॉल्स डेटा आप देते हो, दैट मीन्स फैब्रिकेशन. Okay, what falsification is? Falsification means changing or omission of research results to support claims, hypothesis and other data. So आपके जो claims थे, hypothesis थे in proposal stage, उसको prove करने के लिए आपको जो फाइनल डेटा मिला है उसमें आप चेंजेस करते हो, कुछ डेटा जो है उसको ओमिशन कर देते हो just to prove the claims. That is falsification. Okay, it is also called as manipulation of research. अभी लॉज जो है ना, जो कॉपीराइट एक्ट में कुछ लॉज है जो प्लेजरिज्म को सपोर्ट करते हैं, उसमें मैंने आपको कहा कि ऑथर का जो पहला होता है पैटर्निटी राइट अंडर स्पेशल राइट्स टू क्लेम द ऑथरशिप, ये रिलेटेड है. देन हमारा सेक्शन 57 ऑफ इंडियन कॉपीराइट एक्ट जो है वो ऑथर को स्पेशल राइट्स देता है, जिसमें आप मोरल राइट के अंतर्गत आप यू कैन क्लेम फॉर डैमेज चार्जेस. देन सेक्शन 63 ऑफ इंडियन कॉपीराइट एक्ट जो है वो इंफ्रिंजमेंट को क्रिमिनल ऑफेंस मानता है और उसके लिए सजाएं जो है मैंने डिस्कस की है. ओके, नाउ नरेंद्र मोदी जी भारत के पंतप्रधान है, तो ये शब्द लिखने के लिए आपको डबल कोट लेने की जरूरत नहीं है, ये लिखने के लिए आपको कोई रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज कॉमन नॉलेज. कॉमन नॉलेज का मतलब क्या होता है कि जो नॉलेज सबको पता होता है, दैट इज द कॉमन नॉलेज. एंड व्हेन यू आर राइटिंग कॉमन नॉलेज, यू देयर इज not at all attribution required. Now, what are real life plagiarism scandals? She is actually Doris Goodwin. ये खुद पुलिट्जर प्राइज विनिंग हिस्टोरियन है, and she was forced to step down from the board of Pulitzer when she was found to have accidentally used another's words in one of her books. Okay, so disgracement. Then she is a professor. Okay, after being accused of rampant plagiarism. Rampant means bar. In her work, tenured Professor Madonna was fired from her position at Columbia University. उसका पूरा करियर जो है बर्बाद हो गया. देन ये बहुत बड़ी केस हुई थी न्यूयॉर्क टाइम्स की. जेसन ब्लेयर जो उसका रिपोर्टर था, तो वो एक्यूज था, ही प्लेजराइज्ड and fabricated in more than 40 stories he wrote between 2002 to 2005, and he was forced to give up the career. लेकिन वो उसका तो जॉब गया, लेकिन इस स्कैंडल में टॉप 2 एडिटर्स जो थे न्यूयॉर्क टाइम्स के, उनको रिजाइन करना पड़ा. ओके, देन हार्वर्ड एडमिशन रिवोक. ये जो एक है कॉलेज में एडमिशन लिया था उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में. शी रोट वन आर्टिकल इन लोकल न्यूज़पेपर एंड दैट आर्टिकल वाज प्लेजराइज्ड. ओके, सो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जो है वो उसको एडमिशन रिवोक कर दिया. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस. ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है फ्रेंड्स, 23 फरवरी 2013. You all are teachers over here, and you know how NAC committee visits the colleges for accreditation. उसके लिए SSR सबमिट करता है. तो आप देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या लिखा है. Plagiarism in colleges was always associated with doctoral students and faculty members who copy from hard work of others and pass it off as their own. Now, colleges applying for government accreditation have been found indulging in the same shameful practice. एक कॉलेज था मीरत का, तो उसने अपना एसएसआर लिखा, उसमें पेज नंबर 38 से 139 यानी अप्रोक्सीमेटली 101 पेजेस ऑफ द एसएसआर वेर कॉपीड एज इट इज फ्रॉम द एसएसआर ऑफ लोयोला कॉलेज ऑफ एजुकेशन चेन्नई, जिसको हायर ग्रेड मिला था. मतलब चेन्नई के कॉलेज के एसएसआर से ये 101 पेजेस एज इट इज उठा के अपने एसएसआर में डालना है, यानी कितना बड़ा प्लेजरिज्म है. एंड द प्लेजरिज्म केम टू द लाइट एक्सीडेंटली. नैक ने क्या किया, उसी चेन्नई के कॉलेज के जो सेबेस्टियन सर थे, प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, उनको मेंबर कोऑर्डिनेटर करके पीयर रिव्यू टीम में भेजा. तो
सेबेस्टियन ने मीडिया से बात करते वक्त कहा कि मैं जब उनका एसएसआर पढ़ रहा था तो मुझे ऐसे फीलिंग आ रहा था मैं मेरे कॉलेज का एसएसआर पढ़ रहा हूँ। और मैंने क्रॉस चेक किया तो लिटरली 101 पेजेस ऑफ एसएसआर एग्जैक्टली कॉपीड एंड पेस्टेड। ओके। और ये सबसे बड़ी दुखद घटना 26-year-old फैकल्टी जो टीचर थी वाडिया वुमेन्स कॉलेज सूरत में, सो शी कमिटेड सुसाइड बाय हैंगिंग हरसेल्फ इन हर हाउस। ओके। और उसको डर ये था कि उसके एमफिल का कुछ थीसिस का कुछ पोर्शन जो है प्लेजरिस्ट था, तो शी वाज अपसेट अबाउट इट आफ्टर एलिगेशंस। ओके। Indian advisor CNR Rao has apologized for not noticing some copied text in a paper published last year. देखिए बड़े बड़े लोग जो है इसमें अक्यूज्ड बन चुके हैं। अभी एक ड्रामेटिक एलिगेशन ऑफ प्लेजरिज्म हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट पे। ओके। अभी एक 2014-15 के केस है, रोश एंड सिप्ला केस का जो जजमेंट दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, तो उसमें 33 पैराग्राफ्स, you can imagine 33 paragraphs were taken from the article written by Shwetashri Muzumdar and Ishan Ghosh in the journal Queen Mary Journal of Intellectual Property. ये जर्नल में जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था उसके 33 पैराग्राफ्स इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट ने उठाए उनके जजमेंट में, रोश वर्सेस सिप्ला केस में। दिल्ली हाईकोर्ट ने उसको एक्नॉलेज किया कि यस ये हुआ है। ओके। अपोलॉजी भी दी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने किसके ऊपर डाली, तो एक इंटर्न के ऊपर में डाली जिसने पूरे केस के फैक्ट्स लिखे थे। राइट। मुल्कराज आनंद फॉर लिफ्टिंग एन आर्टिकल बाय रिनाउंड ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर जिनर। देन इंद्रानी एकत, ठीक है, शी डाइड मिस्टीरियसली आफ्टर हर बुक क्रेन्स। Okay. Then V.N. Narayanan resigned in 1999 as editor of Hindustan Times. Okay. When his column was discovered to have been plagiarized from UK Sunday Times. Then B.S. Rajput, VC थे वो कुमाऊन यूनिवर्सिटी के। Okay. He resigned on being indicated for copying chunks of Stanford professor's research paper on black holes. Then Shiva Khera. ओके। सो ये बड़े बड़े पर्सनालिटीज भी एक्यूज्ड है। अभी मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास में एक थीसिस आया था इन 2013। ओके। मैं एक डमी टाइटल आपको बताती हूँ। जैसे स्टडी है कलेक्शन डेवलपमेंट इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज ऑफ गुजरात स्टेट। ओके। तो इन्होंने क्या किया, 2013 में आया तो उसमें 2010 तक का डेटा चाहिए। उसमें डेटा था 1986 टू 1999 का। तो मुझे डाउट आया, मैंने पूरा चेक किया, कहीं पे कुछ नहीं मिला। उस वक्त मुझे सॉफ्टवेयर का एक्सेस नहीं था, लेकिन मैंने शोधगंगा में चेक किया तो शोधगंगा में 2003 में ऐसा कलेक्शन डेवलपमेंट का थीसिस अवार्ड हुआ था। तो वो थीसिस मैंने देखा, इट वाज रिटन इन गुजराती स्क्रिप्ट। ये बंदे ने उसको इंग्लिश में लिख के सबमिट कर दिया एंड दैट डेटा वाज जेन्युइन, क्योंकि वो थीसिस 2003 में अवार्ड हुआ था एंड ही कवर्ड 1986 टू 1999, दैट वाज जेन्युइन। लेकिन ये बंदे ने क्या किया, प्लेजराइज किया था। ओके। देखिए एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एक पेपर आया था। ओके। वो पेपर जो था, वो पेपर मैंने उरकुंड में चेक किया, उरकुंड ने केवल 6% प्लेजरिज्म बताया। तो मैंने बहुत अच्छा पेपर है करके उसको एक्सेप्टेड फोल्डर में डाल दिया। आई वॉज एडिटर ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, तो उसको मैंने शॉर्टलिस्ट कर दिया। लेकिन सेकेंड राउंड में मैं जो पेपर पढ़ रही थी तो उसमें कैसे था कि आई एम ऑफ द ओपिनियन ऑफ, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट। देखिए जनरली रिसर्च पेपर आई यू वी का इस्तेमाल नहीं होता, थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। ओके। तो जब वैसे शब्द आए तो मुझे तो लगा भैया ये कुछ तो भी प्रॉब्लम है। तो मैंने सीधा उसमें से टाइटल उठाया और गूगल सर्च बॉक्स में डाल दिया। गूगल सर्च बॉक्स में डाल दिया तो मुझे एक पीपीटी मिली एंड दैट वाज द कीनोट एड्रेस बाय नैकलिन डायरेक्टर इन वन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। उन्होंने क्या किया, पीपीटी के स्लाइड्स को कॉपी पेस्ट करके वर्ड में एक साथ ले लिया एंड दैट वाज कीनोट एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर लेवल पर्सन।
और वो कॉन्फ्रेंस को खुद के नाम से भेज दिया। देखिए, ये जो उर्कुंड यूज कर रही हूँ मैं काफी सालों से, उसमें एक पिक्युलर एक्सपीरियंस मुझे आया। मैं कोई भी कॉन्फ्रेंस में जब मैं एडिटर रहती हूँ, तो मैं सबसे पहले उर्कुंड को पेपर दे देती हूँ। तो एक पेपर आया, वो मैंने उर्कुंड को दिया। तो उर्कुंड ने मुझे एक लिंक दिया, 100% प्लेजरिज्म। मैंने देखा कि द ओरिजिनल पेपर वाज रिटन बाय उमेश वाई। ओके। और सेम पेपर पहले शब्द से लेके आखिरी शब्द तक कॉपी पेस्ट किया गया था। उन्होंने उमेश वाई की जगह खुद का नाम लिखा था उसी कॉन्फ्रेंस के लिए। कुछ दिनों के बाद में और एक पेपर आया, उसको भी मैंने उर्कुंड को दिया। तो उसमें उमेश वाई का पेपर दिया, ये दूसरे बंदे का भी पेपर दिया। मतलब आप समझ सकते हो, एक ही कॉन्फ्रेंस के लिए दो अलग अलग व्यक्ति ने दो अलग अलग जगह से इंटरनेट पे अवेलेबल एक ही पेपर को चुरा के खुद के नाम से भेज दिया। एंड दैट वाज डिटेक्टेड बाय उर्कुंड सॉफ्टवेयर. So these are all my personal experiences. See, there are so many software available now to check your plagiarism. These are the things you can see. Turnitin, Authenticate, these two are very important software. Urkund is also there. See, this is the homepage of Turnitin, and you can see Turnitin 30 languages को check करता है। Chinese, Japanese, Thai, Korean, Catalan, Croatian, Czech, Danish, French, and all. Okay, this is the homepage of Urkund. You can see. See, friends, whenever you go for plagiarism check, आपको मैकेनिकल रिपोर्ट को कंसिडर नहीं करना है। यू शुड स्टडी दैट रिपोर्ट एंड आप उसका सिमिलरिटी चेक का परसेंटेज कम करने की कोशिश करो। कॉमन नॉलेज को एक्सक्लूड का बटन मारो। उसके बाद में जहाँ पे आपने कोटेशन मार्क्स किए हैं, कोटेशन मार्क्स को एक्सक्लूड करो। राइट। देर आर सम फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑल्सो फॉर डिटेक्टिंग प्लेजारिज्म, लेकिन ये कॉलेज असाइनमेंट स्कूल लेवल तक के लिए ठीक है। आप बीइंग रिसर्चर आप इनको यूज मत करो, दैट इज माय सजेशन, क्योंकि इनके बहुत सारे लिमिटेशंस है। एंड आपका वैल्यूएबल यूनिक डेटा कभी भी ये सॉफ्टवेयर को नहीं देना। सो आई विल जस्ट एन्यूमरेट द थिंग्स। plagscan.com है, देन यू कैन सी ओवर हियर प्लैग ट्रैकर करके है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। plagiarisma.net है, then you can see this is plagiarisma.net. Then we will see some more. Viper है, then free plagiarism checker है। Okay, so these are the things. So आपको citations पे work करना है। For citations you should use style manuals like APA, MLA, Chicago, Harvard. These are the standard style manuals. You can also use online reference management tools like Zotero, Mendeley, EndNote, and all. Right. So, friends, I would like to conclude my talk over here by the message given by Bill Gates. So, Bill Gates has also expressed his views on plagiarism as an intellectual property theft. The theft of intellectual property with the use of computers and internet is on the rise in contemporary time. Bill Gates कहते हैं it is done in three ways: stealing with the web, stealing within the web, and stealing from the web. Okay, so friends, जो हमारा व्यक्तिमत्व है वो आइसबर्ग के जैसा है। आपको सबको पता है, टाइटैनिक देखा होगा। आइसबर्ग जो है वो ऊपर से केवल 10% दिखता है, 90% वो अंदर होता है ना, सी लेवल के। वैसे भी ह्यूमन का कैरेक्टर होता है। जो हम दिखते हैं, हमारा बिहेवियर दिखता है, कैपेसिटीज दिखता है, लेकिन हमारे कन्विक्शंस, बिलीव्स, वैल्यूज, आइडेंटिटी, ये पूरा अंदरूनी मामला होता है। हमारे वैल्यूज, हमारा स्टैंडर्ड्स, हमारे जजमेंट्स, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड्स, मोटिव्स, एथिक्स, बिलीव्स, इसका पूरा इम्पैक्ट ये 10% जो बिहेवियर होता है उस पे पड़ता है। सो फ्रेंड्स, बी पॉजिटिव, बी ऑनेस्ट, and do a quality research. So that is the message today. So I would like to conclude my presentation
at this node. And thank you very much. Thank you. Thank you so much, madam, for so much, very ma'am. informative and wonderful session. Friends, if you have any query, you can please ask. Hello, ma'am. First of Yes. all, I would like to say thank you because it was really superb and very, very convincing session. एक मेरे क्वेश्चन दो है वैसे तो पहला क्वेश्चन है कि आपने जब हम कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं हमारा थीसिस लिखते हैं तो उसमें आई क्यों यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो सब काम रिसर्चर ही करता है तो फिर उसने अगर कहा कि आई वुड लाइक टू दिस इज माय ओपिनियन और आई वांट टू से हियर दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड तो ये आई क्यों नहीं यूज किया जाता उसका क्या लॉजिक है मुझे तो लगता है आई यूज करने से उसकी ऑथेंटिसिटी और भी बढ़ सकती है देखिए सर, एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल राइटिंग। देखिए उसमें और एक होता है टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग के कुछ नियम है, ओके राइट। एक्चुअली टेक्निकल राइटिंग में जनरली थर्ड पर्सन में लिखते हैं।